अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैदराबाद और ये है डियर ब्लॉच एकेडमी। आज हमारा सेकंड लेक्चर है ब्रीफ हिस्टोरिकल रिव्यू न्यूरोलॉजिकल बेसिस का। बिहेवियर न्यूरोसाइंस इज अ wide as a field within the scope of its domain, and every single aspect of brain behavior relationship of any organism comes under its purview. This has extended more recent to point where the disciplines such as neurophysics have emerged, but mathematically model of neural connectivity and communication, as well computer stimulation of complex experiences. Root of behavior neurosciences. Basically, the root of experimentation is psychology emerged from adaptation of method of the physics. The well-known psychophysical method were developed by Weber, who experiment on the relationship of stimulus and response. तो जैसे कि हमने पहले लेक्चर में भी इस चीज़ को डिस्कस किया कि ये बिहेवियर न्यूरोसाइंस है और इसका हम लोग पूरी स्टडी जो कर रहे हैं, हम इसके पाथवेज, ब्रेन के पाथवेज के ऊपर बात करेंगे, इसके न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करेंगे और साइको फिज़िकल की मेथड्स की बात होगी। और ये पूरे का पूरा जो हमारा कोर्स है एक्सपेरिमेंट के ऊपर बना हुआ है और इसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही ये चीज़ें करते हैं। Experimentation believes that uncontrolled observation is non-scientific. There are too many under control variables in behavior for us to draw any conclusions. Experimentalists such as Pavlov believed in the controlling all possible conditions to study behavior. आपने पहले भी पढ़ा होगा कि पेवलॉव की जो स्टडी है वो उसने बिहेवियर के कंट्रोल करने के लिए उसने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो इसका मेन मकसद यही था। और उसका मेन आप देखें कि उसकी जो भी स्टडी थी स्टिमुलेशन की थी और रिस्पॉन्स के ऊपर थी। ये सारे वही न्यूरो ट्रांसमीटर्स, न्यूरो केमिकल्स और इन्हीं चीज़ों से जो है वो चल के उसका जो उसकी स्टडी थी वही यही चीज़ें हमें बता रही होती हैं। Russian physiologist accidentally discovered a different route of studying brain behavior relationship. He was also one of the first to connect physiology with abnormal reaction, which he saw in laboratory dogs, which were required to make finer discrimination beyond their capacity. तो ये हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि जिनकी बेसिस बनी, जो रूट बने इस सब्जेक्ट के। न्यूरोफिजियोलॉजी क्या चीज़ है? फिजियोलॉजी में क्या देखते हैं? was an other important come through the work of the Sir Charles and Charles Bass research on the reflex symptoms. The excellent book on the nervous system functioning and integration and the reflex system was published as a consequence, thus providing the beginning of the study of nervous cell, their development and mechanism and functioning. मैंने आपको कल भी ये चीज़ हमने डिस्कस की कि हमें सबसे पहले हमें अपने ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए, उसके पार्ट्स के बारे में, उसके लूप्स के बारे में, उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, ताकि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे अगर कोई वर्ड्स ऐसे यूज़ करते हैं, टर्म्स यूज़ करते हैं, तो हमें फ़ौरन से हमारे पास वो चीज़ हमें रिकॉल होनी चाहिए कि अच्छा इसका फंक्शन क्या है और इसको यहाँ पे किस लिए डिस्कस किया गया। द यूरोपियन इनपुट जो है वो देखते हैं कि are from Germany, फ्रेंच ब्रोका, फ्रेंच से हमारे पास जो थे वो ब्रोका थे, जो कि हमने कल भी एक एक्सपेरिमेंट उनका डिस्कस किया। पर्टियन में से बेल थे, श्रिंगटन थे, रशिया से पेवलॉव थे एंड अमेरिका से विलियम जेम्स थे। तो ये डिफरेंट हमारे साथ एक्सपेरिमेंट रिसर्चर्स थे जिनकी वजह से जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और इसमें अपनी इनपुट डाली। देयर आर
standard which reflect the scientific culture of the region as well as the thinking and working of the scientist at the time. Then हम लोग जर्मनी का देखते हैं द इमर्जेंस ऑफ द साइकोफिजिक्स SR रिलेशनशिप यानी कि stimulus and response relationship from Weber Labs Frencher work relating to experiences. Physiological responses to physical stimuli are well documented at the beginning of the psychological experiment. Then हमारे साथ हैं Helmholtz and other important contributor from Germany measure for this first time the speed of the nerve इम्पल्स. तो ये एक इनका एक मेन जो हमारे पास इनकी इनपुट आई थी वो ये चीज़ थी कि उन्होंने स्पीड को नर्व की इम्पल्स की स्पीड को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, मेजर किया था. हिज मेन कंट्रीब्यूशन वाज द एरिया ऑफ द वर्जन एंड द एनालिसिस ऑफ द visual apparatus and procedure. His contribution of the study of emotional physiological state is also well known and studied even today. The two important names of the Fritz and Herzig emerged for relating the brain to the motor control of function. Johannes Mulder's famous law of scientific energies of nerves 1838 was given after an experiment demonstrated that the stimulation result in a response by the nerve. तो हम लोग इस चीज़ जब हम लोग ब्रेन की बात कर रहे हैं, न्यूरो साइंसेस की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बहुत से ऐसे साइंटिस्ट को देखेंगे कि जो कि अदर फील्ड ऑफ लाइफ से थे, लाइक मैथ से थे, जिनका ताल्लुक फिज़िक्स से था, जिनका केमिस्ट्री से था, बायोलॉजी से था. उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से हमारा सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ. फ्रेंच से जो चीज़ आई थी वो फ्लोरेंट वर्क ऑन फ्रेनोलॉजी यानी कि एरिया ऑफ द ब्रेन एंड बिहेवियर इज़ आल्सो वेल नोन. Weierstrass is the first one to note that the right side paralysis affects speech as well. Broca located the motor control of the speech known as Broca areas. Later job contribution to sleep research is also well known. तो ये ब्रोका एरियाज़ और ब्रोका एरिया जो हमारा ब्रेन का है उसको हम लोगों ने उसी नेम से ही यानी कि ब्रोका के नेम से ही हम लोगों ने उसको अफिलिएट कर दिया. और देन उस जो रिसर्च थी उसका नेम भी हमने उसी के नेम से किया. और ये हमारे पास दो रिसर्चेस हैं जिन्होंने स्पीच के ऊपर काम किया. देन हमारे पास हम लोग देखें इटली से जो है बस Camillo and Golgi is the first one to selectively stain in the cell body. This strain is known as Golgi. तो ये जो हमारे पास कुछ नेम्स आ रही है, जो हिस्ट्री इसलिए पढ़ाई जा रही है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये नेम अगर यूज़ हो रहे हैं तो वो किस वजह से नेम जो टर्म्स हैं वो यूज़ हो रही हैं. Above you can see the images of the Golgi strain यानी कि आपके पास दो आपकी बुक के अंदर आप लोगों को दी हुई है, इमेज दिए हुए हैं, तो उसको देखें तो वो जो स्टेन वहाँ पे नज़र आ रहे हैं उसको गोल्गी स्टेन कहते हैं. टुवर्ड द राइट इज़ एन इमेज ऑफ द गोल्गी स्टेन ऑफ द एस्ट्रोसाइट्स एट हायर मैग्निफिकेशन. स्पेनिश से रोमन कैचाल थे. उन्होंने 1889 में एनाटोमिकली स्टडी सिनेप्सिस एंड इंडिविजुअल न्यूरॉन्स. ये आल्सो स्टडी सेल्स एंड देयर इंटरकनेक्शन. तो इनकी जो स्टडी थी, ये कैचाल की जो स्टडी है ये बहुत ज़्यादा फेमस है और आगे जाके भी हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे. तो इसकी जो स्टडी है वो हमें जो दे रही है वो सेल्स एंड देयर यानी कि दो सेल्स के अंदर अगर आप देखें कि हमारी बॉडी के अंदर कितने सारे सेल्स हैं, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इसने जो स्टडी की थी वो दो सेल्स के दरमियान जो इंटरकनेक्शन है उसके ऊपर रिसर्च की थी कि वो इंटरकनेक्ट कैसे हो रहे हैं. रेशन Pavlov major contribution in the connecting physiology and the behavior. His work was very much focused on the experimental study. Luria is known as the father of the neuropsychology and his studies were on
गनशूट वॉन्ड ऑफ WWI हेड इंजरी सोल्जर्स। तो इनकी जो सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया न्यूरो साइकोलॉजी के ऊपर कि अगर उनके हेड इंजरीज होती हैं तो देन उनके बिहेवियर्स किस किस्म के होते हैं। तो इन्होंने जब वर्ल्ड वार जो 1 थी उसके अंदर जो सोल्जर्स आए थे हेड इंजरीज के साथ, ठीक है, तो उनके बिहेवियर्स के ऊपर जब इन्होंने स्टडी की तो ये इनकी फर्स्ट रिसर्च थी। इसी वजह से इनको फादर ऑफ न्यूरो साइकोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रेटन है। तो इसमें जो समटाइम्स एज अमेरिकन स्टडीज ब्रेन सबस्ट्रेट ऑफ बिहेवियर, द जर्मन स्टडिंग द SR relationships, the British studying the basic property of the brain, physiology, anatomy, and the chemistry. Shrinking father of neuro physiology prepare a report on the nervous system as acting in an integrated, coherent manner. The reflexive system was clearly analyzed, reflex area, and laid down the basis of the studying the neurons. साउथ अमेरिकन्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि फर्स्ट सिस्टमेटिक अटैम्प्ट्स एट ह्यूमन साइको सर्जरी अकर फ्रॉम 1935 when the neurosurgeons across Monash teamed up with the surgeon Almeida Lema at the University of Lisbon. They performed a series of prefrontal lobotomies, a procedure serving this connection between the prefrontal cortex and the rest of the brain. Psychosurgery is a term for surgeries of the brain involving procedure that modulate the performance of the brain and thus affect changes in cognition with the intent of to treat the alleviate severe mental illness. It was originally thought that by serving the nerves that give power to ideas you would achieve the desirable result of a loss of affect and an emotion flattening which would diminish creativity and imagination. The idea being that those are the human characteristics that are distributed. Historically, the procedure typically consider psychosurgery, prefrontal lobotomy as new almost universally shine is inappropriate due in part to the emergence of the less invasive or less objectionable method of treatment such as psychiatric medication and modified electroconvulsive therapy. In modern neurosurgery, however, more minimum invasive techniques like gamma knife irradiation and foremost deep brain stimulation have arisen as novel tools for psychosurgery. ये हमारे पास कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया कि किन किन की क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही है। देन हमारे पास नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चार्ट है। इसमें आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी इस पूरी हिस्ट्री को जो है वो याद रखने के लिए। इसमें साथ में पहले नोबेल प्राइज़ विनर लिखा हुआ है, देन आपके पास एयर है, देन उनकी कंट्रीब्यूशन है न्यूरो साइंस के अंदर। तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इसकी सब स्पेशलाइजेशन क्या है। एरिया ऑफ सब स्पेशलाइजेशन विद इन द न्यूरो साइंस biological psychiatry studies biological basis of psychiatry disorder and treatment utilizing brain manipulation। तो ये कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं जो कि हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इनका काम क्या है और ये किस वजह से बनाए गए हैं। Neurobiology and developmental neurobiology. Biological systems, especially animals, are the focus for this area. The development and the maturity of the nervous system and the process involved are studied in details. Neuroanatomy. This entire study of the structure, the system of the brain and how they control and modulate behaviors. Neurochemistry. The area investigates neurochemical modulation of the behavior, especially synaptic transmissions
इंट्रा एंड इंटरन्यूरल। तो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के बारे में आपको मैं बताती चली जाऊँ कि ये हमारे अगर आप लोग ब्रेन का जो है वो थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में अगर पढ़ेंगे, अगर थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा भी, बेसिक्स तो आपने पढ़ी हुई हैं, तो इसमें हमारे पास सिनेप्टिक ट्रांसमिशंस होती हैं जो कि न्यूरॉन के इंटर और इंट्रा चलती हैं, ठीक है। उसी से हमारे जो मैसेज हैं और केमिकल्स हैं और देन इसी की इम्बैलेंस होता है और देन हमारे डिसऑर्डर्स लाइक शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, डिप्रेशन। तो ये थोड़ा सा आगे जाके हम लोग इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरो etiology, study of the brain and the biological basis of behavior is it occurs in the natural environment, basically how behavior involves changing, using and evolutionary process। तो ये हमारे पास ज़्यादातर मोस्टली आप लोग सुन रहे हो, देखते हैं कि वो लोग जो कि इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और अभी तक ये चीज़ें रिसर्च पे जा रही हैं कि एक ब्रेन जो है वो पैदा होने के बाद वो कैसे डेवलप होता है और हर पर्सनैलिटी के लिहाज से ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो कैसे कैसे हो रही है और उनके बिहेवियर्स कैसे कैसे है, उनमें चेंजिंग आ रही है और क्या उनका रिएक्शन होता है। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी studies hormonal influences within the brain and modulation of the behavior by hormones। तो जाहिर सी बात है जब हमारे पास हमारी बॉडी के हर एक चीज़ जो है वो हमारे बिहेवियर के ऊपर अफेक्ट कर रही होती है, हमारे ब्रेन के ऊपर अफेक्ट कर रही होती है, तो उनकी स्टडीज़ के लिए हमारे पास ये कुछ डिफरेंट ब्रांचेज हैं। न्यूरोपैथोलॉजी, द फोकस ऑफ दिस एरिया इज़ डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन, हाउ एंड वाई दिस अगर। तो वही बात है कि जब हम लोग न्यूरो साइंस की बात कर रहे होते हैं, ब्रेन्स की बात कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो मेन और पहला क्वेश्चन जो राइज हो रहा होता है वो यही होता है कि कैसे और क्यों ये डिसऑर्डर हुआ। तो अगर आप लोग इस सब्जेक्ट को बाकी साइकोलॉजी से थोड़ा सा हट के लेंगे, साइकोथेरेपी से हट के लेंगे, इसको फार्माकोलॉजी की से थोड़ा सा मिलता जुलता इसको हम लोग करते हैं, क्योंकि फार्माकोलॉजी में तो देन हम लोग ट्रीटमेंट पढ़ते हैं ना, कि आप लोग फार्माकोलॉजिकली जो है वो क्या आप रेकमेंड करते हैं। फार्माकोलॉजी इसकी हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच भी है, तो इसमें हम लोग ये चीज़ें पहले हम लोग इनकी स्टडी करते हैं, देन उसके बाद जो है उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। वो कौन कौन सी मेडिसिन है वो हम लोग न्यूरो फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। स्टडीज ड्रग इंट्रैक्शन विद इन द ब्रेन एंड देयर अफेक्ट ऑन द न्यूरल ट्रांसमिशन एंड सब्सिक्वेंटली बिहेवियर। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करती चलूँ कि हम लोग जब बात करते हैं कि किसी को डिप्रेशन हो गया है, तो हम लोग वैसे साइकोलॉजिस्ट जो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग कहते हैं कि बीच में स्ट्रेसर्स हैं, अदर फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर है वो फैक्टर है। लेकिन जहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं तो वो चीज़ें तो चलती हैं, लेकिन हमारी न्यूरो ट्रांसमिशन जो है वो भी डिस्टर्ब होती हैं, उसकी वजह से भी जो है ये डिसऑर्डर जो हैं वो बनते हैं और इनके अफेक्ट होते हैं, देन हमारे बिहेवियर्स भी चेंज होते हैं। न्यूरो फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इम्पल्सेस बोथ interneural and the intraneural and related changes in behavior। Neuropsychology study brain and behavior correlate especially for the higher order brain functioning and assessment rehabilitation of the patient। तो ये हमारे पास कुछ हमारी ब्रांचेज हैं जो कि किसी एक को भी हम लोग न्यूरो साइकोलॉजी पे अगर हम लोग बात करें या साइकोलॉजी के सब चीज़ों की बात करें, ब्रांचेस की बात करें, तो इनमें से कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है जिसकी स्टडी या जिसके बारे में हमारे पास नॉलेज होना ना हो तो हम लोग चल सकते हैं। एज ए साइकोलॉजिस्ट हमारे पास इन सबसे रिलेटेड और इनके सब क्वेश्चंस के आंसर्स होने चाहिए, देन ही हम लोग एक अच्छा और बेस्ट साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं।